of ESW 8th Annual National Research Conference on Anthropogenic Impact on the Environment, Society and Human Health. So now we are moving for valedictory session. I would like to tell about this conference that we started this conference from Khajuraho. Every year since last 7 years, this was 8th year of this ESW 8th Annual National Research Conference on Anthropogenic Impact on the Environment, Society and Human Health. This 2 days conference done on 30th and 31st January 2021 on online platform due to the COVID-19 pandemic time. It is organized by Environment and Social Welfare Society, assisted by Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, Madhya Pradesh. And it is associated by Bhopal chapter, the National Academy of Sciences, India, Bhopal, Zoological Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Kolkata, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal, Central University of Jharkhand, Ranchi, and Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. And it is internationally collaborated by BR Corporation, Singapore, Monkas, Romania, and Iranian Ornamental Fish Society, Tehran, Iran. So, ladies and gentlemen, first of all, I would like to invite our valedictory session and Foundation Day celebration guest. Our chief guest will be Professor Asha Shukla, Vice Chancellor of Dr. Bhimrao Ambedkar University of Mahu. She is available here. Today, this session presided by Madam. Welcome you by this flower. And our presiding officer will be Dr. Kanhaiya Tripathi, former OSD, the President of India, Government of India. Dr. Kanhaiya Tripathi. You're most welcome, sir, by this e-flower to you. Very nice. Guest of honor, Dr. Nandita Pathak, National Social Entrepreneur, New Delhi. दीदी जी आपको सादर स्वीकृत हो. Our special guest is Commander Bhushan Diwan from Bombay, Maharashtra. Dr. Bhushan Diwan. Dr. Bhushan Diwan. Please on your video, Dr. Bhushan Diwan. And our next guest is Dr. A.K. Bhattacharya, Managing Director of National Green Highway Mission, Government of India. Guest of honor, Dr. Neeraj Kumar, Executive Secretary, the National Academy of Sciences, India, Allahabad. Dr. Neeraj Kumar, National Academy of Sciences, India. Dr. CVS Pratap Singh from Government Science College, Satna. DGP Honorable Swaraj Puri, former Chairman of Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal. Professor Pramod Kumar Verma, former Vice Chancellor, Barkatullah University, Bhopal. सर जी, सर स्वीकार करें सर हमारा वेलकम. योर वार्म वेलकम बाय. हाँ नमस्कार. नमस्कार सुनील जी. सर जी स्वीकार करें. नमस्कार. आशा जी नमस्कार. कौशल्या जी नमस्कार. And our next guest is Professor Akhilesh Pandey ji, Vice Chancellor of Vikram University, Ujjain.
Guest of honor, Mr. Santosh Gupta, CEO, Indian Social Responsibility Network, Government of India. Namaste, Aswani ji. Namaste. Thank you. Sir, you're most welcome. By Thank bunch you. of flower. Thank you. Thank you for virtual flowers. Okay. And last, I would like to invite Dr. Pramendru P. Mathur, former Vice Chancellor of KIIT University, Bhubaneswar, Odisha. And our special guest is Yashpal Singh from New Delhi. Dr. Yashpal Singh. Sir ji, pranam. Now, I would like to invite Dr. A.C. Pandey from Central University, Jharkhand to welcome the speech of our guest. Sir, I think your voice is mute, sir. Audio, please. ओके सो बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों का, और हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमने शुरुआत करी थी इनॉग्रेशन से, और हम पहुंच चुके हैं वैलिडिटी सेशन तक। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम विद सरस्वती वंदना, and in after that we have the keynote address by a eminent scientist from ISRO, who basically given a very good account and the focused area where our existing conference is basically driven on. So he provided an assessment of satellite-based observation for environment, land degradation, forest, and how we can manage our resources. So Dr. Kunal Kumar Das from ISRO presented the keynote address yesterday. And we have the honor of having our chief guest in yesterday's session, inauguration session, Professor Anil Kudhari, Director, MPCST. So with large number of dignitaries and guests of honor, we initiated the program yesterday at around 11:45 a.m. And followed by that, we have a technical session, and then another technical session, and followed by a poster session. So altogether, we have around 15 students presented, even the faculties, scientists presented their views on the theme area of the conference, and the deliberation was very, very helpful in igniting the theme aspects. Further, now we are reaching to the second day and end of the second day. We initiated again the second day at 12 o'clock, and again we had a very warm sort of deliberations on the thematic issues, and covered in around 4 good academic sessions bundled with 6 presentation in each session. So we have around 20 students and other participants, scientists and faculty and doctors presenting their views. And at the end of that technical session, we reached to the valedictory session. And in this valedictory session, I feel it is as important as inauguration, and in some ways it is even more important because we have to now understand how to go ahead from there. The deliberation has ended, and we have a large amount of innovative ideas within us, and how to proceed further, that will be given a direction by our eminent speakers and the people who have joined us in the valedictory session. To grace the occasion, as already been told, we have the honor of having our chief guest, Professor Asha Shukla, Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University, Mau. So, ma'am, we are highly thankful to you that you accepted our invitation and waited for some time delay in the schedule and joined as our chief guest. And we would like to hear from you about the conference and the direction to follow up in the coming years. Also, we have large number of dignitaries as named by
Dr. Ashwini, and we would like to have their views also to how to get the idea, how to proceed further, and that will be again a sort of new insight into going further in this direction. As large number of conferences are happening every day, on webinars are happening, but what is the need of the outcome, where the outcome is being utilized, the government directions to follow, all this has to be basically decided by the eminent people we have with us in this special day. So I would like to now hand over to again Dr. Dubey to initiate the program and proceed with Professor Asa Shukla for the this valedictory address, please. Thank you very much, Professor A.C. Pandey. Now I am requesting to our chief guest, Professor Asa Shukla, Vice Chancellor of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Mahu, to deliberate your fruitful lecture over here. दुबे जी, मैं यहाँ पर डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी को याद कर रही हूँ और आप दोनों के कारण मुझे इतनी अच्छी वैचारिक विमर्श का हिस्सा बनने का अवसर मिला। सबसे पहले आपको शुक्रिया दोनों को कहना चाहती हूँ। आज हमारे साथ हमारे साथी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी, कमांडर भूषण दीवान जी, मैडम नंदिता पाठक जी, नीरज कुमार जी, सुरेश प्रताप सिंह जी, डीजीपी स्वराजपुरी, प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी, हमारे पूर्व वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर पीके वर्मा जी, यशपाल जी, प्रोफेसर केसी पांडे जी, के भट्टाचार्य जी, श्री संतोष गुप्ता जी और प्रोफेसर पीपी माथुर जी और इस सब के संरक्षक एमएस परिहार साहब। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विलंब होने में भी कुछ लाभ होता है। मुझे 2 सेशन सुनने का मौका मिला और मैंने जितनी गहराई से इसकी वैचारिक उत्कृष्ट को अनुभव किया है, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ और फिर से कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय मित्रों, पर्यावरण, समाज एवं स्वास्थ्य पर जो मानव जनित गतिविधियों का प्रभाव है, उसके 2 इस अंतिम समापन सत्र में भी 2 प्रस्तावना बिंदुओं पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि सोशल साइंटिस्ट हूँ, महिला मुद्दों पे काम करती हूँ, तो मेरी स्वाभाविक है सोच समाज के साथ जुड़ी ही होगी और पर्यावरण का मुद्दा समाज का एक अभिन्न अंग है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि हम सब समाज व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, हम लोग समुदाय व्यवस्था में हैं और इसीलिए हम खांचों में बटे हैं। जाति, धर्म, वर्ण, गोरा, काला, श्वेत, अश्वेत, इस तरीके के तमाम प्रांतीय भेद, राष्ट्रीय भेद, ये सारी चीजें, भाषाओं को लेके चिंताएं, ये है। तो एक तो जो हमारी सोच समाज की जगह समुदाय व्यवस्था पर है, उस सोच के साथ एक और पक्ष जुड़ा हुआ है कि इंसान का, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि उसका पर्यावरण से क्या परस्पर सह अस्तित्व है। इंसान के साथ चाहे परिवार छोटी इकाई हो, कुटुंब हो, समाज हो, राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, उसके जब परस्पर रिश्तों पे हम चिंताएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम विश्व शांति के लिए कैसे इकट्ठे हों, तो
तो आज इस कोरोना महामारी के दौर में प्रकृति के साथ उसके संतुलन के लिए समाज की और विशेषकर मनुष्य की क्या भूमिका है, मैं इस विषय को इस तरीके से देखने की कोशिश करती हूँ। तमाम जो चीजें हो रही हैं, और कोरोना के कारण तो पूरा विश्व ही इस महामारी का शिकार हुआ, आंशिक मुक्ति की ओर हम वैक्सीन के माध्यम से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा और ये हमें अनेक प्रश्नों, चुनौतियों और उनके उत्तरों को समझा गया है, जिसमें प्रमुख चुनौती और उसका उत्तर है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य करना है। मेरी जब एक किताब महिला मुद्दों पे आ रही थी, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और जेंडर, और मैं तब चिपको आंदोलन को थोड़ा समझने को, जानने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने देखा कि उस दौर की महिलाओं ने पेड़ों को न काटा जाए तो उसके लिए एक अपना निजी सुरक्षा तंत्र विकसित किया था कि जो लोग आए वो हरे भरे पेड़ों को ना काट सके। तो उन्होंने एक से दूसरी दूरी तक एक व्यवस्था बना ली थी कि एक ग्रुप आवाज देगा तो दूसरी दूरी तक आवाज जाएगी, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और जैसे ही वो लोग वृक्षों को काटने आते थे वो सब एकजुट होकर वृक्षों से चिपक जाते थे। इसीलिए को आंदोलन कहा। महिलाओं की वो उत्कृष्ट पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने वृक्षों को बचाने के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है और इस पर कभी बड़ी व्यापक दृष्टि से बातचीत हो सकेगी। और उस समय वो वृक्षों को काटने आए जमींदार जागीरदारों के मजदूरों ने कहा कि हम पेड़ों को तो काट सकते हैं, हम इंसानों को नहीं काट सकते, और वो बहुत चर्चित आंदोलन। जहां तक समाज की बात है, समाज का संबंध इतिहास से है। आप मोहनजोदाड़ो से लेके अभी तक की तमाम उदाहरणों को देखिए। वृक्ष पूजा, पशु पूजा हमारे यहाँ बड़ी ही श्रद्धा से मनाई जाती है। ऐसा क्यों है? भारतीय संस्कृति ने इंसानियत के साथ नदियों, पहाड़ों, पशुओं, सभी को बहुत ही इज्जत और सम्मान, आदर का जो भाव है, जो परस्पर सह अस्तित्व का भाव है, उसने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ा और उसका बेहतरीन तरीका बनाया कि कहीं हम गाय बछड़े की पूजा करते हैं, कहीं हम सर्प की पूजा करते हैं, कहीं हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, कहीं हम पीपल के वृक्ष को न काटने के, आप यूट्यूब खोलिए, देखे कितना तरीके, कितने उपाय बतलाए जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति ने अपने इतिहास से ये सारी चीजें अपनी संतानों और इस पीढ़ी को दी है। लेकिन हम लोगों ने सीमेंट का जंगल उगाने के चक्कर में इस सहअस्तित्व को भूला और उसके कारण पूरी विश्व शांति संकट में आई। तो इन दो बुनियादी प्रश्नों के साथ कि क्या समाज की मानसिकता में हमें प्रस्तुत होना चाहिए समुदाय से, और दूसरा ये कि प्रकृति के साथ इंसान का सहअस्तित्व कितना आवश्यक है, अपरिहार्य है, इन दो प्रश्नों के साथ मैं थोड़ी सी अपनी बातों को कहना चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य किसी विशेष परिवेश से होता है। यह परिवेश भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों से मिलकर बना है। पर्यावरण के घटकों की अगर बात करें तो हम बहुत सहजता से इसे 3 रूपों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक। मैं अभी सामाजिक पर्यावरण की बात कर रही थी और उसका प्राकृतिक पर्यावरण से रिश्ता जोड़ रही थी और उसमें मानव की भूमिकाओं को तलाश रही थी। इन तीनों चीजों पे मैंने बात कहने की कोशिश की है। आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम चिंताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के बावजूद हम ये पाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग मानव निर्मित परिवेश के लिए बेहद आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है। हम जी नहीं सकते पर्यावरण संतुलन के बिना। महत्वपूर्ण यह है
कि विकास की तेज रफ्तार और तकनीकी के नूतन प्रयोगों के जरिए हमारी जो तृष्णा है और जो अतृप्त तृष्णाएं हैं, वो इन प्राथमिक संसाधनों का अगर इसी तरीके से शोषण करती रही तो हमारे इस अस्तित्व का और हमारे जीवन का क्या होगा, इस पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जब हम कल राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तो हमको लगा कि हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि आज जिस विषय पे बात करनी है वो मामला मेरे दिमाग में कई दिनों से, जब से ये संपर्क हुआ है, वैचारिक स्तर पर भ्रमण कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि जब मानव जनित पर्यावरणीय संकट से चिंतित हैं, लेकिन बापू ने इसे बहुत पहले समझ लिया था और इसका रास्ता भी बतलाया था। और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु लालच और तृष्णा की पूर्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम नहीं माने। जो हमारा लालच है उसने परिवार की मर्यादा को तोड़ा, समाज की मर्यादा को तोड़ा और पर्यावरण की मर्यादाओं को तोड़ा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। उनके बोलने का तरीका पर्यावरण असंतुलन के बोलने का तरीका अलग है। हम लोगों जैसी मनुष्यों की आवाज नहीं है, तो हमने उस मॉडल को नहीं करा, बल्कि दुनिया के विकास का जो मॉडल तैयार हो रहा है, जो गगनचुंबी इमारतें हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका संतुलन हमें इस तृष्णा की भेंट होता दिख रहा है। एक ये सामाजिक चिंता मेरे दिमाग में निरंतर रही है। मानव जनित जो पर्यावरणीय संकट का असर हम सबको न केवल प्राकृतिक संसाधनों, जीव जगत पर ही नहीं, मानव के स्वास्थ्य और समाज पर बहुत बखूबी पड़ता दिख रहा है। जो अमीर है वो इलाज करवा रहे हैं। इलाज बीमारी का हो सकता है, अच्छे स्वास्थ्य का संभव नहीं है, और हम सब अच्छे स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहे हैं। जो थोड़े अल्प आय वाले हमारे परिवारजन हैं, समाज के लोग हैं, जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, लेकिन इंसानियत में कोई अंतिम लाइन का व्यक्ति नहीं होता, तो उसकी भी चिंताएं समाज की चिंता में पर्यावरण संतुलन में शामिल होनी चाहिए, जो कम दिखती है। मानव जनित जो पर्यावरणीय संकट है उसका एक रूप शोषणकारी, सुविधा भोगी, विध्वंसक संस्कृति का परिचायक है, जिसका प्रभाव किसी और पर नहीं, जैसा मैं फिर कहूंगी, मानव जाति पे। अब कैसे है मानव जाति और उसके प्रभाव को थोड़ा सा देखें तो पहले प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का अधिक उत्सर्जन, ओजोन परत का प्रभावित होना, जलवायु परिवर्तन से जीव जगत के कई प्रजातियों का खत्म हो जाना। और अक्सर हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, न्यूज पे सुनते रहते हैं कि अब अमुक पशु की जाति विलुप्त हो रही है, अमुक वृक्ष की जातियां विलुप्त हो रही हैं। जल प्रदूषण, पेयजल संकट, समुद्र के भीतर गहराता संकट और समुद्र का नाराज हो जाना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की बढ़ती दरें, बहुत सारे बड़े मात्रा में निर्माण जिनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कृषि पशुपालन आदि में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जलवायु मृदा प्रदूषण और दोहन, पेस्टिसाइड का प्रयोग, बड़े पैमाने पर कल कारखाने जिनकी सुनियोजित नीतियां तय नहीं हो पा रही हैं, बांध, विज्ञान और तकनीकी का हिंसात्मक संदर्भों में इस्तेमाल। आप सब चूंकि पर्यावरण से जुड़े हुए विद्वान हैं, तो आपकी चिंताएं थोड़ी सी इतर हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो इंसानियत के लिए होगा, और इंसानियत का मामला बिना परस्पर संबंधों के नहीं बन सकता। शुद्ध हवा, पेयजल के अभाव और पेस्टिसाइड और रासायनिक खेती से मिलने वाला जो अनाज है,
कई राज्यों का सुनते रहते हैं कि उन्होंने जो फसल बोई, उन्होंने जो गेहूं बोया, उसका उपयोग वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि इसके दुष्प्रभाव उनके शरीर पर संक्रामक बीमारियों के तौर पर क्या पड़ सकते हैं। लेकिन उसी गेहूं को, उसी अनाज को वो दूसरे राज्यों में भेज देते हैं और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा इंसान के स्वास्थ्य पे, समाज के स्वास्थ्य पे, और ये जो है इसका प्रदूषण फैलता जाता है। मैं आज यहाँ वैचारिक पर्यावरण और मानसिक पर्यावरण की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण और समाज पे ही बात को फोकस करना चाहती हूँ। चाहे क्लाइमेट का एक्शन हो, लाइफ बिलो वाटर हो, लाइफ ऑन लैंड हो, इन सब पे हम सबकी चिंताएं बहुत गहरे से होने चाहिए। और जल और जंगल और जमीन की सुरक्षा के साथ उसकी सतत देखभाल कैसे हो, उसकी परवरिश कैसी हो, इसकी चिंता हमें करना चाहिए। मानव जनित जो पर्यावरण संकट है, सामाजिक जो अस्थिरता है, गैर बराबरी के साथ जो संसाधनों का समान उपयोग नहीं है, वो इन सब चीजों को और बढ़ावा देता ही जा रहा है। और इसमें इस्तेमाल हो रहा है इंसान का लालच, उसकी अतृप्त तृष्णा। मसलन अंधाधुंध विकास और तकनीकी के प्रयोग ने हमको आज उस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अगर हमने पर्यावरण के साथ, वृक्षों के साथ अपना पूजा का रिश्ता नहीं रखा, उनके संरक्षण का रिश्ता नहीं रखा, और वृक्षों से, पानी से, हवा से स्वयं को संरक्षित करवाने का वातावरण पूरे सम्मान के साथ प्रस्तुत नहीं किया, तो ये जो मानव जनित दोष है, भले ही कुछ अतृप्त तृष्णाओं के कारण बढ़ते जा रहे हों, शिकार पूरी इंसानियत। हमें इन सब पर विचार करना चाहिए। आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। Thank you very much, Professor Asha Shukla, Honorable Vice Chancellor of Dr. Bhimrao Ambedkar University, Mahu. Now, in our stage, Honorable Vice Chancellor from Vikram University, Ujjain, डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं ESW सोसाइटी की ओर से। सर जी, आपका you're most welcome. And you're most welcome to all guests who are available on this platform. And I'm requesting to Dr. Mohit Kumar kindly celebrate our 21st ESW Foundation Day. Everybody will join this. Thank you very much. And we will take lecture from all our respected guests. And we are now time for award. I would like to announce first of all ESW Fellowship Award. ESW Society awarded the prestigious membership or fellowship to the scientists working in the field of environment, education, art and science and technology selected from across the country. In this session, ESW Society awarded fellowship to Dr. Arvind Kumar Dubedi, to Dr. Amit Paul, Professor, Institute of Environment and Development Studies, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh, and Dr. Neeraj Kumar, Department of Zoology, L&D College, Moti,
हरि बिहार, Thank you, sir. Dr. Sarda Prasad Mohapatra, Associate Professor of Botany, Nursing, Chaudhary College, Jajpur, Odisha, and fifth ESW Fellow will be Dr. Alok Kumar Gautam, Assistant Professor of Physics, Hemwati Nandan Bahuguda, Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. So congratulations to all this fellow member, and now I am requesting to Dr. Akhilesh Pandey ji for his valuable speech in this valedictory session. Dr. Akhilesh Kumar Pandey ji. सबसे पहले तो मैं दुबे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया अपनी बात रखने में। दुबे जी के बारे में तो ऐसा है कि उन्होंने इन्वायरमेंट का एक प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी सोसाइटी ESW जो है बहुत ही अच्छा और एक तरीके से प्रेरक का काम कर रही है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। अभी मैं सबसे पहले तो 21st जो सेलिब्रेशन है इस सोसाइटी का, मैं उसके लिए हम सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से सोसाइटी जो है पर्यावरण प्रहरी के रूप में कार्य करती रहेगी। अभी शायद मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी भी मैं सुन रहा था जुड़े हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। मैं खास तौर से सोसाइटी के बारे में कहना चाहूंगा कि सोसाइटी कई सालों से मैं दुबे को जानता हूं, उनके साथ मैं जुड़ा रहा हूं और उन्होंने काफी इसमें पर्यावरण के प्रति जो एक चेतना जगाने का काम वो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज जब प्रकृति और संस्कृति में एक दोनों में असंतुलन की स्थिति आ रही है, जिसके कारण कि बहुत सारी ऐसे समस्याएं पर्यावरण के प्रति आ रही हैं। जैसा भी हाल में आप यदि ध्यान दें तो कोरोना क्यों आया? कोरोना सिर्फ इसलिए आया कि प्रकृति और संस्कृति में एक तरीके से असंतुलन फैल गया, जिससे वाइल्ड लाइफ हमने फॉरेस्ट को ध्यान नहीं दिया और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और वाइल्ड लाइफ जब डिस्टर्ब हो गई तो वाइल्ड बर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे जो है ह्यूमन इन्वेटिंग एरियाज में आना शुरू किया, जिसके कारण कि आज कोरोना से पूरा विश्व जो है परेशान है। दूसरी बात आई, इसमें अक्सर मैंने सुना है ESW का जो कॉन्फ्रेंस कई बार ऐसी हुई है, मैंने उसमें सुना है जैसे एक जगह और यदि हम देखें तो असंतुलन की स्थिति आई है, जैसे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। 1960 जो था वो गोल्डन पीरियड था सिंथेटिक केमिकल का, लेकिन सिंथेटिक केमिकल्स हमारे जो सॉइल हैं उनको कितना नुकसान किया, इसका एक उदाहरण है कि कपूरथला से लेकर के सूरत तक जाने वाली ट्रेन जिसका नाम कैंसर ट्रेन है, ये रिजल्ट ये रहा कि एक तरह से असंतुलित संसाधनों का उपयोग हमने किया, संतुलित नहीं किया और हमने अपनी जो संस्कृति रही, अपने वेदों में जो पर्यावरण संरक्षण की जो एक तरीके से जो हमारे वेद विज्ञानों का जो ज्ञान था उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। उसको धीरे धीरे हमने जो है इवन स्वतंत्रता के बाद भी हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण ये रहा कि जो असंतुलन फैलने लगा और वो मानव जीवन को बहुत प्रभावित करने लगा सभी क्षेत्रों में, चाहे जल हो। आज जल की स्थिति आप देखें तो गंगा, बहुत सारी हमारी जो पवित्र नदियां रही जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन आज उनका पानी जो है वो कई जगहों पे नहाने लायक भी नहीं। ड्रिंकिंग वाटर समस्या जो है हमारे देश में कितनी भयानक है, वो कहीं कहीं रिमोट एरियाज में है। इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि नदियों का पानी जब नहाने लायक नहीं है तो पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस सब कारण जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति और संस्कृति में संतुलन होने के कारण है। और डेफिनेटली जब प्रकृति और संस्कृति में असंतुलन होगा तो विनाश की तरफ विकास नहीं हो सकता। इसलिए
मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ये असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, उसके कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और ESW जैसी संस्थाएं आज भी भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत फायदेमंद है। वो एक तरीके से कमिटेड अपना काम कर रही हैं। इसलिए मैं आज इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। वो सारे लोग पर्यावरण के प्रति कितने उदार हैं, कितना पर्यावरण के बारे में वो चिंतित हैं। खासतौर से माननीय अश्विनी दुबे जी को, जो कि एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासतौर से सोसाइटी के पदाधिकारियों को। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much. This was Dr. Akhilesh Kumar Pandey, Honorable Vice Chancellor of Vikram University, Ujjain, and former Chairman of Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Madhya Pradesh. Now, I would like to announce our next award, ESW Excellency Award. The aim of this award is for excellence in leadership and cooperation for promotion and environment and social welfare society at the national and international level. And this award goes to 3 persons for this session: Dr. Isa Yadav, Department of Zoology, Brahmanand College, Kanpur. And second award goes to Dr. Chandrasekhar Dwivedi, Associate Professor of Geoinformatics, Central University of Jharkhand, Ranchi. And third award goes to Dr. Pragya Khanna, Principal Government Degree College, Chennai. She has recently MOU signed with ESW Society for academic and environment protection activities. Congratulations to Dr. Isa Yadav, Dr. Chandrasekhar Dwivedi, and Dr. Pragya Khanna. Thank you so And much, I am sir. requesting to Dr. Nandita Pathak for his valuable speech in this valedictory and Foundation Day celebration of this conference. Dr. Nandita Pathak from New Delhi, National Social Entrepreneur. Thank you so much, sir. आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। 21वीं सदी में 21वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मना रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी। और अश्विनी जी का जो काम है हम सब लोग जानते हैं। 21 साल से लगातार कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हो, उस व्यक्ति की मानसिकता और वो मनोभाव कहाँ से आया है ये हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गोदावरी एकेडमी बनाया है। गोदावरी जी उनकी माँ है, माँ के नाम पे उन्होंने यह स्थापना भी किया। ESW का आज 21st फाउंडेशन डे मना रहे। आपको बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप देश में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए और एजुकेशन में भी, उनको आप फेलोशिप अवार्ड्स के साथ सम्मानित कर रहे हैं, उसका भी हम लोग हृदय पूर्वक आभार, अभिनंदन एवं वंदन करते। जिनको आज ये अवार्ड्स मिला है, सम्मान मिला है, उनका यह सम्मान के लिए भी हम सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अश्विनी जी का हम लोग जानते हैं, ESW आज 8th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित है। इसमें आज चीफ गेस्ट के रूप में हम लोग के बीच में विराजमान है और उनका वक्तव्य भी हम लोगों ने सुना है। प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, सम्माननीय कुलपति महोदय जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मऊ से आप हैं, आपका भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, AK भट्टाचार्य जी, नीरज जी,
CVS प्रताप सिंह जी, DGP ऑनरेबल स्वराज पुरी जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी भाई साहब का भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और परमादरणीय कुलपति महोदय जी, अखिलेश पांडे जी, संतोष गुप्ता जी, यशपाल जी, माथुर जी और आप सभी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि अश्विनी जी का कार्यक्रम ऐसा लगता है हम सब लोगों को ये अपना कार्यक्रम है। अपनापन इसीलिए है क्योंकि ये जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करते, अपनी मदर अर्थ को अच्छे से सुंदर कैसे कर सकते, सस्य श्यामलाम की जो बातें हैं कैसे हो सकता है, उसके लिए वे निरंतर काम कर रहे। इसीलिए यह कार्यक्रम हम लोगों को लगता है अपना। अश्विनी जी कहते हैं आपको आना है, फिर हम लोग कभी इन कार्यक्रमों में मना नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब लोग भी पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए लगे हुए हैं। अपनी मातृभूमि को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, तो इसी में जो पर्यावरण के इसमें जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, छोटी सी बात, अभी मैंने 2-3 प्रेजेंटेशंस देखा, एक ने बताया था अभी हम लोगों को फास्ट फूड्स के तरफ नहीं जाना है। सही बात है, जितना हम लोग रेडी टू यूज वाले में आ जाएंगे उतना ही कचरा हम लोग अपनी मातृभूमि को देते जाएंगे, अपनी धरती माँ को देते जाएंगे। कल हम एक बहुत सुंदर जगह पर दिल्ली में गए थे और वहां पर हमने देखा कि अच्छे खासे युवा, पढ़े लिखे युवा वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पे चीजों को फेंक रहे हैं। इस तरह हम लोग अपनी धरती माँ का श्रृंगार कर रहे तो खराब तो लगता ही है। इसीलिए युवाओं से हम लोग निवेदन करते हैं, कम से कम अपनी धरती को, अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को हम लोग अच्छे से रखें। एक छोटा सा काम मैंने एक ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ, तो हमने देखा अनंत कुमार जी जो मंत्री थे, उनकी पत्नी ने एक छोटा सा ट्वीट किया था, हमें वो बात दिल को लग गई। जैसे हम लोग अभी, क्योंकि शहरों में दूध जो है पन्नी में आता है, पॉलिथीन में आता है, हम लोग पॉलिथीन को जस्ट कट कर देते, वो छोटा सा पीस, इतने पीसेस होते हैं कि उसका ना रीयूज होता है ना उसका कोई उपयोग होता है, वो धरती माँ के ऊपर परत बनाते चले जाते। उन्होंने कहा दूध को जब आप लोग काटोगे उसको उसके साथ ही रखना। ऐसे ही जो भी छोटी छोटी प्रयासों से हम लोग अपनी धरती को सुंदर बना सकते। इस आयोजन में उपस्थित सभी प्रोफेसर्स का, वाइस चांसलर्स का और जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, आप सभी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में उत्पादन में, प्रोडक्शन हम लोग अच्छे से अच्छा करें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, लेकिन उपभोग में, कंज्यूम करने में हम लोग संयम रहे। इस तरह हम लोग अपनी धरती माँ का सच्चा प्यार भी दे सकते हैं, श्रद्धांजलि भी बोल सकते हैं आप। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। और 21वां यह है, हम लोग हंसते गाते हुए इस सदी में 21वें स्थापना दिवस जो आप मना रहे, ये लगातार 100 वर्ष तक चले। अच्छा काम हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। Thank you very much, Dr. Nandita Pathak ji, for remind me 21st century and 21st year establishment day. Now time for recognition award. This award based on ESW recognition award for valuable positive contribution to environment and a social welfare society for nature conservation. And this award goes to Dr. Akhilesh Kumar, scientist, plant protection, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalay, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा। थैंक यू सर। डॉक्टर शिवजी मालवीय, डिप्टी सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कांग्रेचुलेशन सर। डॉक्टर नीतू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। डॉक्टर संगीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर SSDP गर्ल्स PG कॉलेज रुड़की उत्तराखंड। एंड डॉक्टर
Shashi Mishra, Assistant Professor, Korean Language, Central University of Jharkhand. Congratulations to Dr. Akhilesh Kumar, sir. Dr. Thank Shivji you very much, Malvi, sir. Dr. Neetu Mishra, Dr. Sangeeta Singh, and Dr. Shashi Mishra. Thank for you Thank very you this much, so sir. much, sir. Thank valuable you. Thank you so award much, sir. and Thank you. your valuable positive contribution to environment and social welfare society for nature conservation. Congratulations. And Thank you so much. I would like to announce our next award, ESW Appreciation Award. This award based on to support in ESW activities goes to Dr. Smita Singh, Krishi Vigyan Kendra, Rewa. Thank you. Thank you, sir. Dr. Deepak Kumar Mishra, Associate Professor, Biotechnology, AKS University, Satna. Professor Arvind Chandra Pandey, Central University, Jharkhand. Dr. Dinisha Malvi, Department of Botany, Chandrasekhar Azad Government PG Nodal College, Sihor. Dr. Shashi Mishra, Assistant Professor, Korean Language, Central University, Jharkhand. So congratulations to all of you. And now I am requesting to our next special guest, Honorable Commander Bhushan Diwan from Bombay, Maharashtra. Dr. Bhushan Diwan. Yes, sir, you're most welcome. Very, very good afternoon to Dr. Ashwini Dubey and all the respected co-panelists. It is a rare privilege which I have been taking for last many years to be associated with Dr. Ashwini Dubey. I'm amazed at the kind of great work that he is doing just out of labor of love. और कहां से ये लोगों को जोड़ देते हैं. It is remarkable. मैं तो इनके सामने मैं तो छोटा फील करता हूं जिस टाइप का ये काम कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को जब बोलने का मौका मिलता है तो हम बोल देते हैं, सो कॉल्ड कोट अनकोट ज्ञान बांट देते हैं, और ये तो कर्मयोगी हैं. पॉइंट ये है, मैंने डॉक्टर नंदिता का भाषण सुना 2 साल पहले. हम उनके साथ फिजिकल प्रेजेंस में थे, तो कोरोना की वजह से तकलीफ है. तो मैं देख रहा हूं उनका हमेशा फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है. और ऑफ कोर्स डॉक्टर अखिलेश, अर्लियर एक्स चेयरमैन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कमीशन, और एक मैंने सुना, मैं नाम स्किप कर गया, जहां एकेएस यूनिवर्सिटी जहां मैं वाइस चांसलर था, वहां से भी प्रोफेसर हैं, अभी आयु हैं, जिनको आपने अवार्ड भी किया है, सम्मानित भी किया है. और पॉइंट ये है, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ख्याल ये है कि हम लोग अपने लेवल पे बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, और शॉर्टकट की होड़ में और एक स्टेटस सिंबल की होड़ में हम उन चीजों को नकार देते हैं. और कंपटीशन की होड़ में, अब मुझे याद आ रहा है सडनली, लालू प्रसाद यादव जी ने कुल्लड़ में चाय का दोबारा रीस्टार्ट किया था ट्रेन्स पे. अब ये जो प्लास्टिक कप्स हैं बड़े कन्वीनियंट तो लगते हैं, बट मैंने एक स्टडी किया, जो हमारे ओशंस हैं, जितना उनके अंदर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है. अभी लास्ट वीक मेरा एक सेशन था, इंडियन ओशन पे रिव्यू में दे रहा था. जो ब्लू इकोनॉमी हम कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया का जो लैंड मास है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, कोस्ट से 200 किलोमीटर होता है, वो जो है उसके अंदर हमारा एरिया है 70% ऑफ द लैंड मास. और कितना? 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो कितना भारी जो समुद्र
हमें दिखता ही नहीं है। क्यों? तो सरफेस दिखता है, और जितना पॉल्यूट कर रहे हैं। अब मालदीव जाइए तो मछलियां दिखती हैं, पोर्ट ब्लेयर जाइए, मैं तो बीइंग ए नेवल ऑफिसर में कहीं जगह गया हूं तो नीचे शोर दिखता है, अंडमान निकोबार में दिखता है, सीशल्स में दिखता है, पर हर जगह हम लोग इतना खराब हो रहा है कि जो आप देख लेना, जो आज 8 बिलियन 8 अरब आबादी है हमारी, तो आने वाले 50 साल में 60 साल में चांद पे और मंगल ग्रह पे तो घर कब बनेंगे मालूम नहीं, उससे पहले आप देखना समुद्र में घर बनना शुरू हो जाएंगे। Being an ex-naval officer, having seen 1971 war, or being served in many other countries as part of being vice president of Tata Consultancy, मैं आपको बता सकता हूँ, मालदीव्स कंट्री की बात कर रहा था, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए समुद्र जो है हमारी लाइफ है, फ्यूचर हमारे बच्चों की लाइफ समुद्र है। उन्होंने 30 साल पहले 20 साल पहले कैबिनेट मीटिंग, मालदीव्स की कैबिनेट मीटिंग अंडर द सी हुई थी, हाईलाइट करने के लिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, और उसके अंदर इतनी वैरायटीज हैं, हम फौना फ्लोरा की जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे हम कहते हैं ना आइसबर्ग, 1/3 दिखता है, 2/3 नीचे होता है। समुद्र के अंदर जो चीजें हैं, वैरायटी है, फ्लोरा फौना फार्म्स, ब्लू इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, वो तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 2/3 ऑफ वर्ल्ड वाटर जो है, अर्थ सरफेस वाटर है। वो उसके अंदर कितना लाइफ है और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। और सारा माइक्रो प्लास्टिक्स, जो नंदिता मैडम भी बात कर रही थी, माइक्रो प्लास्टिक्स इतने इकट्ठे हो गए कि स्पेसीज की स्पेसीज खत्म हो रही हैं, और ये सब कनेक्टेड सर, ये ऑर्गेनिकली कनेक्टेड वर्ल्ड है। अर्थ दिखता है तो अलग है, वाटर दिखता है नहीं, कम अंदर नीचे अंडर वाटर नहीं दिखता है तो अलग है, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन, which is the largest ocean of the universe, of the earth, उसके अंदर डेप्थ वेरीज फ्रॉम एवरेज डेप्थ इज 3000 मीटर्स और हाईएस्ट डेप्थ उनकी 7000 मीटर्स है। क्योंकि मैं सबमरीन वॉरफेयर में काम किया है मैंने, तो उसके अंदर कितनी लाइफ है मालूम ही नहीं पड़ता है आपने को। अर्थ के अंदर तो बियॉन्ड ए सर्टेन 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर यू विल नॉट सी एनी लाइफ। समुद्र आप समझ ले 7.5 किलोमीटर तक नीचे लाइफ है, और ये ह्यूज रिसोर्स है। क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम पॉल्यूट हो रहा है। तो मैं ये समझना, मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर हमें जरूरत ये है कि हमारे जो हमारा कल्चर सभ्यता, वो एक श्लोक है कि नीचे जब उतरते हैं, मैं बिस्तर से उतरूं तो मैं प्रणाम करता हूं धरती माता को, धरती माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूं। तो ये हमारे कल्चर के अंदर, सभ्यता के अंदर कई चीजें ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, तो इजिली हम बच्चों को फॉलो करें तो लेक्चर की जरूरत नहीं, वो फॉलो ही होना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कई स्पीकर्स हैं, इतना अच्छा गैदरिंग इकट्ठा किया है डॉक्टर अश्विनी साहब ने कि मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब मुझे बुलाने के लिए और इन प्रबुद्ध लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much, sir. Thank you very much, Honorable Commander Dr. Bhushan Diwan, for your valuable words in this 8th Annual National Research Conference. And now time for next award, Innovative Environmentalist Award. This award goes to Dr. Sushil Kumar Shukla, Assistant Professor, Department of Transport, Science and Technology, Central University, Jharkhand. And second Innovative Environmentalist Award goes to Dr. Rakesh Kumar Pandey, in charge Publication, Makhanlal Chaturvedi, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल. And thirdly, Miss Asanya Khare, Department of Botany, Sri Krishna University, Chhatarpur. Congratulations to Dr. Sushil Kumar Shukla, Dr. Rakesh Kumar Pandey, and Miss Asanya Khare. And next award is Godavari Academy Impact Award. The purpose of this award is recognized individual or team who have initiated program within their department or across the university that had a positive impact. This award goes to
Dr. Arjun Shukla. He is gold medalist, zoologist, Dr. M.H. College of Science, Jabalpur, Madhya Pradesh. Dr. Sandeep Kushwaha, Scientist, Geological Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Mr. Mohit Kumar, Department of IT Cell, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Congratulations to Dr. Arjun Shukla, Dr. Sandeep Kushwaha, and Mr. Mohit Kumar. Thank you so much, sir. And our next award is Social Innovative ESW National Award. This award based on outstanding contribution in the field of NGO. And this award goes to Mr. Muhammad Adil. Thank you, sir. Thank you. He is volunteer from Nehru Yuva Kendra, Punch, Jammu Kashmir, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Social Innovative ESW National Award goes to Mr. Arjun Punstog from Leh, Ladakh, Mr. Santosh Gupta, CEO ISRN New Delhi, Dr. Pushpendra Singh Gautam, Chairman, Sri Krishna University, Chhatarpur. So congratulations to Mr. Muhammad Adil, Mr. Arjun, Mr. Santosh Gupta, Dr. Pushpendra Singh Gautam for this valuable award. And now I am requesting Thank you, Aswani ji. Thank you. And now I am requesting to Professor Dr. Ulrich Berg from Germany. Kindly say few words about this conference and this valedictory session. Dr. Ulrich Berg from Germany. You're most welcome, Dr. Ulrich Berg. Kindly say few words for this valedictory session and ESW Earth Annual National Research Conference. What's your experiences? Yes, very good. Thanks a lot, Dr. Aswani, for inviting me first to the conference, now to this valedictory session. So I'm very happy about this conference, and I was watching quite a good part of it. There were very interesting, important lectures, presentations. We all know that that is a very important subject, what mankind has done with our environment. And now the task is, what can we all do in order to get things right again? So that is a very big task, and it means work in all the different areas, because we have to undo the pollution of the atmosphere, of the soil, of water. Of course, first we have to stop the whole thing. That means going back to more natural ways of farming, avoiding waste, segregating waste, and so on. There was a lecture on microplastic that shows how dangerous, you know, you have just a little plastic bag, you think that's innocent, doesn't weigh much. But what happens in nature, because we are so many people, that is a lot. So we have to really make a lot of changes, and we all have to go back to a more natural way of living. That is an important message which we can get out of this conference. So we really have to make changes in order to make this planet a better place again, so that our children also will be happy to live here on this planet. So thanks again, and wish you all the best. And then let's meet at the next conference next year. Yes,
Thank you very And much. hopefully next year it will be in person, not through internet from Germany, but we all would hopefully meet in Kachurao, which is a very nice place, and we can meet there, and that will be a much better way to do such a conference. Although this way is also quite good. It was quite successful, so congratulations to that also. Thank you. Okay, thank you very much. This was Ulrich Werk, German scientist, and he is working for HOMA, which is very useful for our human health. And now time for Lifetime Achievements Award. This award based on outstanding contribution in the concerned field. ESW Society have decided to honor by this award Professor R.K. Day, Honorable Vice Chancellor, Central University of Jharkhand, Ranchi. Professor R.K. Day. And secondly, Dr. M.S. Parihar, President, Bioxon LLC, Washington, United States of America. He was former professor and head School of Studies in Zoology and Biotechnology, Vikram University, Ujjain, and former chairman of Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal. And next award is Best Scientist Award. This award based on outstanding contribution in the field of research, and this award goes to Dr. Sivesh Pratap Singh, Professor and Head Department of Zoology, Government PG College, Satnam, Madhya Pradesh. Congratulations to Dr. R.K. Day, Dr. M.S. Parihar, and Best Scientist, Dr. Sivesh Pratap Singh. Thank you very much, Shani. Now, congratulations, sir. Now I would like to invite Dr. Yash Pal Singh from New Delhi for your valuable speech in this 8th Annual National Research Conference. Dr. Yash Pal Singh from New Delhi. Hello. Yes, sir, please. Hello. Yes, sir. Hello. Please continue, sir. प्रोफेसर दुबे सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, हम सभी तक आ रही है। 96% इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और हजारों लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप सबको सुन पा रहे हैं। Thank you so much, sir. And at the very outset, let I congratulate to you that the wonderful work you are doing, not only for the society, for the humanity, for this world, for this universe. And really, I salute you on the occasion of your annual conference for the establishment of your EWS society. And as Professor Nandita told that this is the 21st of your years of establishment of the society in the 21st of century. Sir, my heart is full of best wishes and congratulations to you and all of the flora and fauna which is just scattering not in this world, not in this country, sorry, all around the world. The scholars from the Germany, the person who are associated with the environment, not only in this country, but I find that experts are there with you. I really thankful to all of the person who are associated with your mission. And this is a great mission because this is the commitment. And this is the commitment towards the nation. This is the commitment to a teacher, which is fulfilling all kind of the expectation of everything. As a little bit technocrat, I would like to request all of you, because all of the people are associated with the environment, with the pollution, and with the to beautify this beautiful planet Earth.
So I would like to request that not only through water, not only through air, not only through noise, there is a very, very harmful pollution, and the environmental is going to be destroyed by the, Wi-Fi signals, by the electromagnetic communication. I would like to request you, all of the person, because I'm the man of communication engineering, that at least you people should take the research project, must have their VAS consolidated, because you know that TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, that is the regulator for the telecom services, has made a survey and have a detailed study on the harmful radiation by this communication system. And they find that the bad impact and very, very dangerous impact on the human being, on the animals, on the plants, on the flora, on the fauna, on the bird, on the insects, and all kind of the animal. Even I may tell you, I must share that because I'm working as a director in Somani Institute of Technology and Management, Rewari. There, this was the district where the mustard has been yield. It was the super top, means it was the top district to yield the mustard. But nowadays it has slight, means there is bad impact by these radiations who are harmful for the animals, for the flora, for the fauna, for the crops, for the insects, and everybody. So my humble request to all of you, beside the considering these all kind of the pollution, pollutant, that micropollutant, microplastics, and bad air, beside that you should also include in your research study the bad impact of the radiations which are coming through this electromagnetic kind of the communication system. Once again, I am very, very grateful to all of you who had just, and especially to Professor Ashwini Dubey, because he told me that 12 o'clock today the session will be going on, and continuously I am just watching it without any tiredness, without any, any kind of the sense that it is over exhausted. He is continuously working with the same zeal and geniusness. It is the commitment towards the nation. Really, sir, I'm very, very thankful and congratulate all of you, and thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. This was Dr. Yashpal Singh ji from New Delhi. And now time for some more award, which is related with our presentation. First of all, I would like to tell you that during this conference, I announced for abstract before start this conference. So I received 96 abstract from 14 states. These 14 states are Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Meghalaya, Uttarakhand, Rajasthan, Ladakh, UP, Gujarat, Odisha, Karnataka, Delhi, Andhra Pradesh. And apart from this, 3 countries also sent some abstract: Nepal, Germany, and Argentina, and also Andaman Nicobar. During this conference, 6 technical sessions were conducted by ESW Society and 38 papers were presented. 1 poster session. In this poster session, 3 posters presented. Now I would like to announce Young Scientist Award goes to Shivam Dubey, Science College, Jabalpur, and Young Environmentalist Award goes to Vijay Kumar, College of Fisheries, Barwal, Gujarat. Award of Best Oral Presentation from first technical session, Himani Singh, Department of Molecular Biology and Genetic Engineering. Secondly, in the same session, Dr. Ruby Yadav, Biodiversity and Wildlife Unit, University of Lucknow. From second technical session, Priya Namrata Topo, Tata Institute of Social Science Studies, Bombay.
From third technical session, Riddhiban Govind Bhai Beg, College of Fisheries, Gujarat. And from fourth technical session, Diana Joseph, JSS College. And from fifth technical session, Arunik, Department of Geoinformatics, University of Jharkhand. And from sixth technical session, Deepika Tiwari, Government Madhav Science College, Ujjain. And from poster presentation, Lakhan Lal Pandey, Department of Geology, Bundelkhand University, Jhansi. So this was the young scientist, young environmentalist, and best paper presentation and best poster presentation. So congratulations to all of you. And now I am moving for most important award of this ESW Society, that is National Amazing Godavari Memorial Award. I would like to tell you about this award, that we started this award in the memory of my mother, late Srimati Godavari Dubey. During his life, last word, I remember that to continue your study. By this word, we started our journey with not only but all my family members. She left me when I was in class 9th. So in that memory, every year in this conference, I announced one award, who is best working in education and science. I would like to tell name of National Amazing Godavari Memorial Awardee 2014, Dr. U.C. Srivastav, Professor of Geology, University of Allahabad. In 2015, this award given to Dr. S.N. Pandey, Pro-Chancellor, the Global University of Nagaland. In 2016, this award given to Professor K.K. Sharma, former Vice Chancellor of MDS University, Ajmer. 2017, this award hand over to Dr. Privrat Shukla, former Vice Chancellor of Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur. 2018, this award went to Dr. Pramod Kumar Verma, former Vice Chancellor of Barkatullah University, Bhopal. 2019, this award was to Commander Bhushan Diwan from Mumbai. And 2020, this National Amazing Godavari Memorial Award given to Professor H.S. Sharma, University of Rajasthan. And now time for this session, 21st century and 8th National Amazing Godavari Memorial Award goes to Professor Asa Shukla, Honorable Vice Chancellor of Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Mahu. I am requesting to
our president of this event, Dr. Kannaiya Tripathi, former OSD, to the President of India for his preside speech of this conference. And after that, we will take few words from Honorable Vice Chancellor Asa Sharma ji. Dr. Kannaiya Tripathi. थैंक यू दुबे सर। इस कार्यक्रम के सभी विद्वान साथी वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं दुबे जी को ये कहना चाहूँगा कि आप इस अवार्ड को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए ज़्यादा भावुक हो गए और निश्चित रूप से माँ माँ होती है, तो हम सब आप सबके साथ आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम में हम सबसे जुड़ी हुई बाबा साहब अम्बेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से जुड़े हुए डॉक्टर प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर अश्विनी दुबे जी, स्वराज पुरी जी, नीरज कुमार जी, नीतू मिश्रा जी, नंदिता पाठक जी, भूषण दीवान जी, ए.के. भट्टाचार्य जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, संतोष गुप्ता जी, प्रमेंदु माथुर सर, इस कार्यक्रम के कन्वीनर ए.सी. पांडे जी, और ममता दुबे जी, आप डॉक्टर दुबे जी की वाइफ हैं, वो भी 21 साल से इस यात्रा में शामिल हैं। सर वंदना दुबे जी। वंदना दुबे जी जी। और उसके साथ अल्रिच वर्क फ्रॉम जर्मनी। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर दुबे जी और हमारे मित्र डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी, आप सभी लोगों ने मिलजुल करके जो यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो मैं पुरस्कार विजेताओं को, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वाइस चांसलर R.K. डे सर को, और बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की वाइस चांसलर प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, और उसके साथ जितने लोगों को पुरस्कार मिला सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से अभी जब गोदावरी अवार्ड का उद्घोष करने वाले थे डॉक्टर दुबे जी, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा था कि यह पुरस्कार प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, और उनको मिला है। बहुत बहुत बधाई मैडम, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आप निश्चित रूप से लगभग 30-35 सालों से सामाजिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, यह 8वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड ह्यूमन हेल्थ, इस विषय पर ऑर्गेनाइज की गई। और ESW जो कि 21 साल से अनवरत इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसके कर्ता धर्ता प्रोफेसर दुबे जी, कल रात को दुबे जी से बात हो रही थी
तो उन्होंने कहा कि हमारा 21वां साल है। हमने कहा कि अब शादी योग्य हो गए हैं, कोई बात नहीं है, सरकार ने मान्यता दी है 21 साल का, ये तो आप अब आगे और जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दुबे जी बहुत बहुत बधाई आपको 21वें साल में, 21वीं सदी में, 21वें वर्ष में, और आप आगे बढ़ें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने इस मंच पर हम सभी के समक्ष जो भी बातचीत की, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट्स को रखा। निश्चित रूप से मैडम, आपने जिन क्षेत्रों में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, खासकर प्रकृति से जुड़ने की बातचीत आपने की, वह निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायक है। और चंदी भट्ट के बारे में आपने बात की, चिपको आंदोलन मूवमेंट के बारे में बात की। वो चिपको आंदोलन एक मुहिम थी और मुहिम आंदोलन के रूप में चली गई, आंदोलन का स्वरूप ले ली और दुनिया भर में उसको अप्रिशिएट किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि कहीं न कहीं हम प्रकृति से संवाद करना भूल रहे हैं। प्रकृति से हमारा संवाद जो है वो टूटा है। अभी मैं संयुक्त राष्ट्र की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी इज कोलैप्सिंग, डिजास्टर आर डिप्रेसिंग, डिजास्टर आर स्प्रेडिंग, ओशियन आर चोकिंग विद प्लास्टिक वेस्ट। ये जो समस्याएं हैं, इसके बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम छोटे छोटे पहल को भले ही नोटिस न करें, लेकिन मित्रों, हमें उन पहल को नोटिस करनी चाहिए। जैसे प्रोफेसर अश्विनी दुबे जी जो छोटी मुहिम से लेकर के आज दुनिया के तमाम साइंटिस्ट को इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी और AC पांडे जी, आप लोगों ने जो यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से किया है, और इसमें करीब 6-7 और एजेंसीज और संगठन हैं जो कि साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। ये लगेगा कि हाँ, ये छोटा कार्यक्रम है और हमारा एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन धरती को बचाने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप सबका यह अप्रतिम योगदान है और इस सबके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ पर 2-3 चीजों का जिक्र करना चाहूँगा। दुनिया में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हो रही है, और साथ साथ आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने SDG 2030 पर भी बहस चला रखी है। SDG 2030 के माध्यम से जिस एजेंडे के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी धरती और क्लाइमेट को हम बचाना चाहते हैं, उन सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं हम यह महसूस करने लगे हैं कि यह प्रयास जो हमारा है, ये कहीं हमसे बहुत से बाहर तो नहीं जा रहा है। उसकी वजह है, आप देखेंगे कि 9 मिलियन पीपुल जो है वो पोल्यूशन से प्रत्येक वर्ष अफेक्टेड होते हैं। हमारी जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और उसके कारण जो अभी प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम ने जिस ओर इशारा किया कि हमारी जो ग्रीड है, हमारी तृष्णा जो है, वो कहीं न कहीं उस पर वो प्रभावित कर रही है। प्रोफेसर पांडे सर भी इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये तृष्णा क्यों हो रही है?
क्योंकि हमें उस तरीके के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, हमारे मानसिकता को उस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। प्लास्टिक अगर इतनी दुरूह चीज है, बेकार चीज है, तो उसे हम क्यों नहीं प्रतिबंधित कर रहे हैं? और प्रतिबंधित केवल कुछ सीमाओं तक होगी तो प्रतिबंध उसको नहीं माना जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इसके लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी राज्य हैं, स्टेट्स। दुनिया भर में जो शांति और अमन की समस्याएं हैं, उसका भी कारण स्टेट्स है, और जितने भी प्लानिंग्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसका भी कारण स्टेट्स है। तो मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि यदि रियो दी जेनेरियो से लेकर के इवन ईपी के जो प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया भर में फैलाने की कोशिश हो रही है, तो उसके पीछे हम विफल होते चले जा रहे हैं कहीं न कहीं, और उसके कारण में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन हो रहा है ना, उस तरीके से हमारे बीच से एनवायरनमेंट के लिए आंदोलन या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आंदोलन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो GNH है, जो GDP होती है, उसी तरीके से GNH होता है। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत ही लोअर लेवल पर है। कुछ देशों ने इसे प्राप्त किया है क्योंकि वहां पर स्वच्छता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है, और हिंदुस्तान के बहुत सारे मुहिम को आप देखें, स्वच्छता के बड़े बड़े नारे तो दिए गए, लेकिन वो नारे ही नारे रह गए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें ग्रास रूट लेवल पे नहीं दिखता है। आप इस गलतफहमी में न रहिए कि ये समस्या केवल भारत के लिए है। मैं दुनिया के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ देखता हूँ, जब वहाँ के स्थितियों के बारे में समझता हूँ तो बहुत सोचता हूँ कि आखिर क्यों हमारा नैतिक बल या स्टेट्स का नैतिक बल इस तरीके का काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और जिसके माध्यम से हम गुड हेल्थ, गुड जनरेशंस डेवलप कर सकते हैं। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम नहीं अचीव कर पाएंगे। पहले MDG था, अब SDG 2030 आ गया। हो सकता है कि हम 2050 तक कोई और लक्ष्य बना लें। तो यह चीजें हमें समझने की जरूरत है, और हर इंडिविजुअल का की जो ड्यूटी है और उसके जो राइट्स हैं उसे भी डिफाइन करने की जरूरत है। स्टेट्स की जो ड्यूटीज और राइट्स हैं उसको डिफाइन करने की जरूरत है। अगर हमारे दुनिया के स्टेट्स दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अच्छी पॉलिसीज बनाएं और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित रूप से हम जिन एंथ्रोपोजेनिक स्थितियों को समझ रहे हैं वह उसके समझने का दायरा हमारा चेंज हो जाएगा, और हम कुछ नए वातावरण के साथ, हम गुड हेल्थ के साथ जिएंगे। लेकिन मित्रों, समस्या यह होती है कि यूएन ग्लोबल मिशन जिस प्रकार से एक मिशन के तहत सभी देशों को एकत्रित करना चाहता है, अभी मैं देख रहा था कि संयुक्त राष्ट्र की जो PGA है उसमें बहस चल रही थी क्लाइमेट चेंज पर। उसमें भी तमाम देशों ने चिंता जाहिर की कि हमें इस ओर ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। लेकिन आप पिछले साल देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा थुनबर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आवाज उठाई थी, और दुनिया के तमाम और भी जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं
उन लोगों ने आवाजें उठाई हैं, और हमारे जो टुकड़े टुकड़े आवाज है, यह एक निनाद के रूप में, एक स्वर के रूप में अगर पूरी दुनिया को जागृत करने के लिए पहल कर सकती है तो इसे हमें जरूर करना चाहिए। ESW और इसके मुख्य प्रेसिडेंट प्रोफेसर अश्विनी दुबे इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 21 साल से कार्य कर रहे हैं इस दिशा में। तो जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उन लोगों को हम बधाई देते हैं, लेकिन खासकर अभिनंदन तो अश्विनी दुबे जी का होना चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं सर, आप अभिनंदनीय हैं। उसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी और AC पांडे जी, जितने भी संगठन और संस्था इससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वाइस चांसलर, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इस बड़े मंच पर एक अच्छी बहस 2 दिनों तक आयोजित की, और निश्चित रूप से इससे एक नया माइंडसेट बनेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर दुबे जी, आपने माता जी के नाम पर जो पुरस्कार इस साल का है वो प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को दिया, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि आप अगर आशा शुक्ला जी का नाम लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था, लेकिन मतलब मेरे मन में ये था। तो बहुत अच्छी बात है, वो 35 सालों से कार्य कर रही है मैडम, बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है। स्त्री विमर्श के क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका कार्य है, योगदान अच्छा है, तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं मैडम को सुना तो उन्होंने विषय के साथ बहुत न्याय किया। तो आज भी आपने मैडम बहुत विषय के साथ न्याय किया है, और मैं बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप विषय के साथ समझौता नहीं करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी, वह तो पूरे मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। मैं पांडे सर आपसे अपील करूंगा कि अगले वर्ष जब हम 9वें एनुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करें तो पांडे सर आप कम से कम प्रोफेसर अश्विनी दुबे जी को इतना सहयोग जरूर करें कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर हों और वो सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लगता है कि उनकी यहाँ स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मैडम भी पार्टिसिपेट करेंगी अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो 9वां और 10वां कार्यक्रम होगा हमारा, वह और भी भव्य तरीके से होगा, और ये खजुराहो में ही हो तो और अच्छी बात है। तो दुबे जी, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं अगले वर्ष के कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष आप मध्य प्रदेश की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हों, प्रोफेसर गौतम जी को भी एक पुरस्कार मिला है आपके संस्था की तरफ से, जो कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में प्रबंधक या मैनेजर हैं, तो उनको भी मैं बधाई देता हूं। तो मैं चाहूंगा कि सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो और भव्य तरीके का कार्यक्रम होगा। और यदि मैं सरकार में रहता हूं तो मैं अगले साल इसको किसी न किसी, चाहे वाइल्ड लाइफ से या तो भारत सरकार के किसी पर्यावरण की एजेंसी के साथ भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नया वर्ष भी है,
नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से पक्षियां, पेड़ और छोटे छोटे कीड़े अपने हिस्से का पर्यावरण के लिए काम करते हैं, उसे हम महसूस करेंगे जब हम प्रकृति के साथ संवाद करेंगे ना, जी। तो पता चल जाएगा कि हाँ वो किस तरीके से उस हमारे एनवायरनमेंट में सहयोगी बने हुए हैं, और हम मनुष्य अपने ग्रीडनेस के कारण किस तरीके से उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जब उस महसूसगी को हम करेंगे तो हम जरूर प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से जो आशा शुक्ला मैडम कह रही थी कि हमारे जो प्रत्येक दिन है वो किसी न किसी त्योहार के रूप में है, उत्सव के रूप में है, और कोई न कोई नदियां जो है वो माताओं के रूप में कही गई हैं, और जितने पेड़ हैं उनको किसी न किसी देवता के रूप में हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, आप लोग जानते होंगे। पीपल जैसा कार्य क्या हम मनुष्य नहीं कर सकते? ऑक्सीजन पीपल देता है, हम ऑक्सीजन कितना पैदा कर सकते हैं? हम तो बिना एसी के नहीं रहना चाहते। ये हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है। अगर हम उपभोक्तावादी संस्कृति से बचेंगे नहीं तो हम एनवायरनमेंट के खिलाफ कार्य कर रहे होंगे। इसलिए मित्रों, मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इस अवसर पर यह संकल्प लेंगे कि अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसे निभाएंगे। SDG 2030, मिलेनियम गोल, ये सब नारे हैं, और इन नारों के साथ जो हमारी प्रासंगिकता बन सकती है उसको भी हम करें, लेकिन अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं उसे जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देते हुए नमस्कार। Thank you very much, sir. This was president of our 8th Annual National Research Conference, and now I am requesting to Professor Asha Shukla, please say few words about National Amazing Godavari Memorial Award, and after that I am requesting to Dr. Sivesh Pratap Singh sir for vote of thanks. माननीय अश्विनी जी, ये भारतीय संस्कृति ही है, और उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि आपने अपनी माता की स्मृति को इस ऊंचे स्तर पर जीवंत रखा, कि आपने उनके लिए एक अति विशिष्ट सम्मान की न केवल संकल्पना की, बल्कि 10 वर्ष आप उसको निर्वहन कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब आप इस सम्मान के बारे में कुछ कह रहे थे तो आपके शब्दों के ऊपर आपके भाव थे, आपकी वाणी में जो कंपन था और भावनाओं में जो स्पंदन था वो आपके शब्दों पर बहुत भारी था, क्योंकि उस समय एक पुत्र बोल रहा था, अपनी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, अपनी माँ के आंचल की सौंधी सुगंध को महसूस कर रहा था और उनकी स्मृतियों को जी रहा था। मैं आपके बहाने से सारे दुनिया की जो भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं उन बेटे बेटियों को जरूर ये कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को आदर और सम्मान प्रकट करने का ये बेहतरीन तरीका है, इसको अपनाएं। और आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार को, आपकी संस्था को आदर व्यक्त करना चाहूंगी, सम्मान व्यक्त करना चाहूंगी, भाव व्यक्त करना चाहूंगी
कि आपने इस तरीके के सम्मान की संकल्पना को साकार किया। कई वर्षों से आप ये सम्मान दे रहे हैं। मैं सुन रही थी कि उसमें अनेक बहुत ही अति विशिष्ट व्यक्तित्वों के नाम शामिल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि मेरा चयन आपने, आपके परिवार ने, आपकी संस्था ने, आपके साथियों ने क्यों किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अपनी माँ के बहाने से आपने दूसरी माता का सम्मान किया है, और इस सम्मान को और अधिक समृद्ध कर सकूं, समाज हित में काम कर सकूं, इसकी निरंतर चेष्टा होगी। इस सम्मान के कारण नहीं, आपका जो एक आत्मीय भाव निरंतर, जब से आपने मुझे आमंत्रित करने के लिए फोन किया, डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी जी ने फोन किया, और जिस आत्मीयता से हमारे कुछ निजी पारिवारिक संकट के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद हम दोनों ही एक समय सीमा में साथ जुड़ सके, मिल सके, वो उसी भाव की ही परिणति थी। नहीं तो हम आप दोनों ही जानते हैं, आयोजन तो अक्सर होते हैं, लेकिन आयोजनों में वैचारिकता और आत्मीयता दोनों का होना उनको अति विशिष्ट बनाता है। मैं आपकी माँ को सादर प्रणाम करती हूँ। अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से सम्मान और आदर के साथ उनका पुण्य स्मरण करती हूँ। निश्चित तौर पर मैं आपसे और आपकी संस्था से निरंतर ही जुड़े रहूंगी, और आपने बंधन भी ऐसा बांधा है कि मेरे पास विकल्प भी नहीं है, मैं जुड़े ही, क्योंकि मैं भी एक भावुक व्यक्ति हूँ और मुझे अपनी वैचारिकता से ऊपर भावुकता अति प्रिय है। तो मैं उसी तरीके के संबंधों में विश्वास करती हूँ। इस सम्मान को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं, इस वैचारिक यात्रा को और ज्यादा बढ़ाऊं, इसका प्रयास होगा। आप सबने मुझे इस योग्य समझा। आपकी समझ को और आपके विश्वास को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस सम्मान के उर्ण से अपने कर्तव्य बोध के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बधाई मैडम। सभी लोगों को। हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, डॉक्टर नंदिता पाठक जी कुछ बात करना चाहती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर नंदिता पाठक। अगर जुड़ी हो तो कृपया प्लीज आए। Okay, now I am requesting to Dr. C.V.S. Pratap Singh sir for a vote of thanks for this ESW 8th Annual National Research Conference. प्लीज अनम्यूट कर लें। धन्यवाद अश्विनी जी। जैसा कि कल उद्घाटन सत्र के स्वागत में सभी अतिथियों के स्वागत करते हुए मैंने कहा था कि यदि आप एक बार इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे तो आप उससे क्विट नहीं हो पाएंगे, आप बराबर जुड़े रहेंगे। और उसकी मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत सारे हमारे अतिथि जो जुड़े वो पूरे समय तक जुड़े रहे, चाहे वो जयपुर से डॉक्टर अश्विनी कुमार जी हों, चाहे वो बॉम्बे से कमांडर भूषण दीवान जी हों, चाहे वो उज्जैन से डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी हों, चाहे वो जर्मनी से डॉक्टर उल्रिच बर्ग जी हों, चाहे वो उज्जैन से डॉक्टर अखिलेश पांडे जी हों,
और चाहे वह डॉक्टर नंदिता पाठक जी हों और भी जितने लोग भी, प्रोफेसर AC पांडे जी, मैंने ये देखा है इस हर कार्यक्रम में कि लोग अपना भाषण देके वो वहां से हट जाते हैं अपनी व्यस्तता बता के कि मुझे अब किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है या मेरी अपनी ऐसी व्यस्तता है। परंतु ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कहना चाहिए कि ये अश्विनी जी के एक पारिवारिक कार्यक्रम है, जिसमें उनकी पत्नी वंदना दुबे जी, उनके बेटे मोहित, ये सभी लोगों का एक ऐसा, और उनके जितने भाई हैं, जब कभी खजुराहो में अभी तक ये सातवां जो इनका अनुष्ठान या जो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस होता रहा, जिसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी भोपाल चैप्टर का भी एक सहभागिता रहा, जिसका कि मैं सेक्रेटरी हूँ, और हर कार्यक्रम में मैं अपनी बराबर उपस्थिति देता रहा हूँ और प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जो भी इनके एक बार इन कार्यक्रम में जुड़ जाता है किसी भी हैसियत से, चाहे वो मुख्य अतिथि की हैसियत से, चाहे वह अवार्डी की हैसियत से, या वक्ता के रूप में, या प्रतिभागी के रूप में, वह हर वर्ष ये प्रतीक्षा करता है कि कब 30 और 31 जनवरी आए और हमें उनका एक सर्कुलर प्राप्त हो। और उसी की परिणति आज दिख रही है कि लगभग 100 से अधिक लोग जो हैं इस गूगल ये जूम मीट पे जुड़े हुए हैं। इससे अधिक लोग जो हैं वो यूट्यूब में होंगे, इससे अधिक लोग जो है वो फेसबुक में होंगे। इन सभी के लिए जो है सभी हमारे अतिथियों ने अपने अश्विनी जी के लिए बधाई प्रेषित की है और शुभकामनाएं दी हैं कि आगे भी वो इसी तरीके के पर्यावरण से संबंधित जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें हम सभी लोगों की सहभागिता रहेगी। मेरा आभार देने का आदेश हुआ है उनकी तरफ से। आप सभी सर निवेदन, जितने भी विशिष्ट लोग हैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, और इसी अपेक्षा के साथ कि हर वर्ष आपकी जहां भी जैसी भी भूमिका आप चाहते हैं वह इस कार्यक्रम में जुड़िए, और हम लोगों को एक आप जो बड़ों का एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक शुभकामनाएं मिलेंगी, एक निश्चित रूप से बहुत होगा। प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी का हम लोगों ने बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में जो लोग नहीं जुड़ पाते वो किन्हीं कारणों से वो शायद इस चीज को पछताते हों कि इस बार यह अवसर मैंने खो दिया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस बार कोविड-19 के कारण हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और यह कामना करते हैं कि अगली बार जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ भी जिस जगह छतरपुर या खजुराहो जहाँ भी अश्विनी जी की 9वीं कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ हम लोग सब पुनः से एकत्रित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बधाई हो अश्विनी जी, बधाई आपको। बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सीखा। बहुत ही मार्मिक अवार्ड है। देखिए, ये मैं इससे गुजर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बहुत मतलब आंख से आंसू आते ही इस अवार्ड को लेने में। सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर जी। अपना सब नेक्स्ट ईयर सर फिर से करेंगे कार्यक्रम, हर साल रहता ही है। आप लोगों से बातचीत करेंगे, और जनवरी लास्ट वीक रहता है, चूंकि 31 स्थापना दिवस भी पड़ता है अपनी सोसाइटी का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में, चूंकि हम अब इतना सब नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए, उस तरह से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। थोड़ा सा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि नहीं निकल पाते हैं। फिर भी प्रयास हर बार हमें कहा जाता है कि हम एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से उसको खजुराहो में करें, बड़े रूप में करें। ये बात सही है कि बहुत से सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक अच्छे डिग्निटरीज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इसमें हमें कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। लेकिन हम सर आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि खजुराहो में इसका एक बड़ा हब बनाया जाए और एक अच्छे तरीके से इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन करने के लिए एक बड़ी समिति का गठन किया जाए, तो हम शायद इस कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में लंबे समय तक चला पाएंगे।
अदरवाइज हमने सामान्य तौर पर यह देखा है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसका जीवन खत्म होने के बाद वो काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। हम आप सभी लोगों से ये आशा करते हैं कि ये ESW सोसाइटी का कार्यक्रम अनावरत चलता रहे और ऐसी कुछ रूपरेखा और ऐसा कुछ डॉक्टर अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, उन्होंने कल भी कहा था कि हम कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि ये संस्था आगे मतलब लगातार एक कॉन्फ्रेंस चलती रहे ज्वलंत विषय को लेकर के। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी स्ट्रेटजी करने की आवश्यकता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा छोटे पड़ जाते हैं। हम आप सभी जितने हमारे नगमा अवार्डी, नेशनल अमेजिंग गोदावरी मेमोरियल अवार्डी हैं, उनसे और जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी मीटिंग करके कहीं ऐसी जगह पर बैठ करके कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे हम आगे आने वाले समय में इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकें। फॉरेन कंट्री से भी बहुत से प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, लगभग 22 कंट्री के सदस्य हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो जाते हैं जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सर्जियो रिकार्डो हमारे साथ अर्जेंटीना से है और उल्रिचबर्ग जी हैं, और भी बहुत सी कंट्री हैं, ईरान है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। और लगभग भारत के करीब 22 राज्यों से जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका प्रेजेंटेशन हम खजुराहो में देखते हैं। कई बार हमें कुछ परिस्थितियों में ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे यहाँ रिसर्च खत्म हो गई है, हमारे यहाँ कोर्स खत्म हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये भी बात देखने को मिलती है। लेकिन जब हम कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वास्तव में हमें ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं होता है। साल में एक बार हम रिफ्रेश हो जाते हैं कि अभी भी एक्सपेरिमेंटल वर्क चल रहे हैं और साइंस को आगे प्रमोट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंटिफिक टेम्पर को हमें कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। उसी साइंटिफिक टेम्पर को हम ढूंढते रहते हैं पूरे समूचे विश्व में और एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों की मेल आईडी और फोन नंबर हमारे पास संधारित है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको रखा है, सजो करके रखा है। हम चाहेंगे कि वो आगे आने वाले समय में काम आए और आगे कुछ अच्छा कर पाए। हमारे रिसर्च स्कॉलर हमारी राह देखते रहते हैं। विज्ञान अगर है तो हमारा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेगा। शिक्षा जरूर हमारे यहाँ थोड़ा सा कमजोर है, तो ऑनरेबल वाइस चांसलर्स जितने भी हैं उन सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को एक भौतिक आधार पर हमें सुधारने की आवश्यकता है। जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है और विकृत हो जाती है तो उसको संभालने में निश्चित तौर पर समय लगता है, ये बात सही है। पर अगर हम थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इस अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपने साइंटिफिक टेम्पर को इसमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लगा पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के अंधविश्वास, कुरीतियाँ और जो विकृतियाँ हमारे समाज में एक जेनेटिकली भी फैली हुई हैं और जो सामाजिक तौर पर हम एक भ्रांतियाँ भी देखते हैं। कई बार हम रेप का केस सुनते हैं, बलात्कार का केस सुनते हैं, लूटपाट का केस सुनते हैं, तो बहुत आहत हो जाते हैं कि हम एक अपने मानव जीवन जो हम अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं उसके बावजूद इन्हीं मानव जाति के द्वारा इस तरह से कृत्य किए जाते हैं। और मनुष्य के द्वारा जो डिग्रेडेशन किया गया है, मनुष्य ही एक ऐसा टूल आगे आने वाले समय में साबित होगा जिसके द्वारा हम इस सभी विकृतियों को दूर कर पाएंगे। तो हमें ऐसे टेम्पर को चुनने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, आप सभी लोगों का हमें सहयोग प्रदान हुआ, आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी लोगों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम मतलब बंद तो करने का आश्वासन हम कभी नहीं देते, कभी बोलते नहीं है। हम फिर मिलेंगे अगले समय में। मुझसे देखी नहीं जाती है जुदाई, मुझसे देखी नहीं जाती है जुदाई, साख पर बैठे परिंदों को उड़ाऊं कैसे, साख पर बैठे परिंदों